Very good afternoon. On my personal behalf and on behalf of Indira Gandhi National Open University, I welcome all the students at the studios in IGNOU campus and those who are present at our regional centers. I welcome all of you on this special teleconferencing session being conducted for induction and orientation session for Certificate in Motorcycle Service and Repair Program. Before going further, I take this opportunity to introduce my colleagues here who are present here and will be giving their valuable inputs in this induction program. To my right, Dr. S.K. Vyas, who is the co-coordinator for this IGNOU Hero Honda project. After that, Mr. Amit Chopra from Hero Honda Motors Limited, Mr. Rajneesh Mehta, he is also from Hero Honda Motors Limited, and Mr. Partho Datta, also from Hero Honda Motors Limited. Dear students, as you all know, that this is basically a joint collaborative initiation of Indira Gandhi National Open University and Hero Honda Motors Limited, where we are trying to give training, structured training to our students so that they can take the advantage of structured training being given by Hero Honda Motors Limited and IGNOU jointly, and subsequent certification jointly from Indira Gandhi National Open University and Hero Honda Motors Limited. Before going into further details, let me apprise you what happened till date. We have conducted 7 cycles of this program so far, and in these 7 cycles, more than 900 students have been trained and certified by under this project. And last cycle, which was the 7th cycle, this was conducted at 13 centers across the country, in which 9 centers were from Hero Honda training centers and some non-Hero Honda centers, which were basically the private institutes or the government institutes. They have joined hands for this program. These were conducted at those places, and 254 students were trained and subsequently certified through 7th cycle, which was conducted during November and December. Now here we are conducting the induction and orientation session for the 8th cycle, which is to be conducted during this February and March 2008 at 15 centers. 2 more centers have joined. As you all know, in every induction and orientation session, we have customarily welcome first the new centers who have come into the fold. They have joined this program and they have become our training center. Indira Gandhi National Open University has also recognized these centers as the Program Study Center Vocational, and the appropriate center code have already been given to the existing centers, and also we are in the process of awarding the center code for the new centers which have joined. I happily announce for this cycle, 8th cycle, 2 more institutes. One is Shri K. Krishnaswamy Naidu Industrial Training Center, Coimbatore, and another is from BEG and Center, Kirki, Pune. It's an army establishment. You can see on your screen. Mr. K. Matthew Jacob is the program in charge for Coimbatore Center, and Colonel J.S. Brar is the program in charge for BEG and Center Kirki. BEG and Center Kirki is basically a training center of Indian Army. They want their tradesmen to be trained under this project. So this center is exclusively for Army, and likewise we have 2 more centers of Indian Army, particularly Corps of Engineers. One is located at Roorkee and other is at Bangalore. They may also join hands for this program in future. So I welcome on behalf of Indira Gandhi National Open University these 2 centers for imparting training under this program. Now for this presentation for induction and orientation, for which we are here, basically we will be giving a presentation about this program. Before that, few slides on the university, because the students should also know that where they have come, which university they are studying and what that university is. So some slides on basically the salient feature of the university, and thereafter we will go straightway for the details of the program. And I request all the officials and students present at our regional center that you just wait for 20 minutes when we complete our presentation, and thereafter we will start our interaction with the centers, where the officials of Hero Honda Motors Limited and our regional director, assistant regional directors, they are present at our regional centers, and the students as well, we can interact with them. I will straightway start
with the university. You can see on your screen, basically Indira Gandhi National Open University is the biggest university in the world, having more than 130 programs, and in which more than 15 lakh students have been enrolled and studying at this moment. 1.5 million students are studying, and we have a strong network of our regional centers, which are 68 in numbers, which are located at different locations, definitely on the state capitals and even some other big cities of the states, of the major states rather. And we have also catering the armed forces, and for which we have exclusively created the regional centers, 5 for Army Command Centers, 8 for Air Force Command Centers, and 4 for Navy Command Centers. These command centers of armed forces have directly been recognized as the regional center to operate through the single window operations for the defense officials, those having the, they have the different kind of requirement because they keeps on moving from one place to another place. So for single window operation, to facilitate them, we have recognized their command centers as the IGNOU regional centers. We have on a lower hierarchy, you can see on the screen, we have over 1500 study centers, program study centers and work centers, which are basically the place where the students go for their training, for their teaching, for their counseling. As I told, for this program, CMSR program, we have got 17 training centers which are located at different locations in the country, and those are the program study center for the vocational education, and they have been recognized at PSCV. V is for vocational education. As you all know, students, basically we are dealing in different kinds of courses. We are dealing in different programs through different schools in the university. 21 schools are there at this moment in the university, and we are conducting program for different target group in the country, but at the same time, Indira Gandhi National Open University is not only a national and central university, it has also an international stature. And we have our presence in 37 countries. For those, for the benefit of from Hindi belt, मैं उन सभी छात्रों को ये बताना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि इस देश में विभिन्न पाठ्यक्रमों में लोगों को जानकारियां दे रहा है, प्रोग्राम लोग कर रहे हैं और उन प्रोग्राम में अपना जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ा रहे हैं। उसके साथ ही 37 देशों में भी हमने अपने प्रोग्राम शुरू किए हैं, और ये वो प्रोग्राम है जो उन देशों की जो भी रिक्वायरमेंट है, उनकी जो भी जरूरत है, उसके लिहाज से ये प्रोग्राम उन देशों में शुरू किए गए हैं। Lastly, the university at one front launching its own program in different disciplines. At the same time, we are also assisting the developing countries to start similar kind of program as per their need of their locale, so that they can also come up with the education standard, academic standard in their country, and at the same time also can take the advantage of the course material which IGNOU has already developed, and there should not be any duplication of effort. So these are the salient feature of the university in which you have enrolled yourself for this program, which is Certificate in Motorcycle Service and Repair. If we see the university objectives, because any institution, the foremost thing is its objective. What are the objectives of the university? If you see that impart education and knowledge through various means suited to ODL system. ODL is nothing but open and distance learning system. As you all know that we deal with distance education. Here the students are at different locations. We are sitting at Delhi in headquarters. We are basically imparting training to our learners who are distantly located. So this is first of the objective, that to take education at the doorstep of the learner who is at the far-flung areas, who is situated in areas where he is working. So we want to take the education from here to the doorstep of the learner. Second objective is basically to provide higher education to the large section of the population, but at the same time we have the mandate for starting new programs for the disadvantaged or the marginalized sector of the society. इसके अंतर्गत जो हमने कई प्रकार के प्रोग्राम शुरू किए हैं, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जिसका ये भी प्रोग्राम CMSR प्रोग्राम स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से है। हमने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए कुछ प्रोग्राम शुरू किए। हमने फुटवेयर सेक्टर में काम करने वाले जो हमारे कामगार हैं, उन लोगों के लिए भी हमने
प्रोग्राम शुरू किए हैं। इसी प्रकार इससे पहले हमने टैनरी वर्कर्स के लिए प्रोग्राम शुरू किए थे। तो इस तरह के प्रोग्राम जिसका कि मैंडेट हमारे पास है, जो हमारे विश्वविद्यालय की स्थापना एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से हुई थी, बीइंग ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उस एक्ट में भी इस बात के लिए प्रोविजन था कि हम सोसाइटी के उस वर्क के लिए जो कि एजुकेशन से वंचित रह गए किन्हीं कारणों से और जो कि काम में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए भी कुछ प्रोग्राम शुरू करें। तो उसके तहत हमने कई प्रकार के प्रोग्राम शुरू किए हैं। एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनिवर्सिटी टू एनकरेज, कोऑर्डिनेट एंड असिस्ट द ओपन यूनिवर्सिटीज and distance education system while determining the standards in such system in the country. Basically, as you all know that it's the national open university, at the same time we have some state open universities also. So one of the objective of Indira Gandhi National Open University is also to promote and assist the state open universities and the Directorate of Distance Education housed in conventional universities, as well the Correspondence Course Institute. So we assist all those institutes who are dealing with the distance education, and finally to strengthen the natural and human resources of the country through the medium of education. So these are the objectives of our university. Now I will take you here straightway that why the university has started this kind of program, and particularly in context at this moment why for motorcycle service and repair. यहाँ पे आप स्क्रीन पे यदि देखें तो यहाँ एचआरडी सिनेरियो जो ऑटो इंडस्ट्री में इस समय प्रिवेल करता है कंट्री में, जो इंडस्ट्री के अंदर, उसको हमने डिपिक्ट करने की कोशिश की है। ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री होती है उसमें ऊपर जो इंजीनियर्स होते हैं, फिर सब इंजीनियर्स होते हैं, फिर ओवरसीयर्स होते हैं, फिर उसके बाद सुपरवाइजर, वर्कर्स, सब तरह के लोग काम करते हैं, तभी जाके उस इंडस्ट्री को बेसिकली वो अच्छा काम कर पाती है। तो इस तरह से स्क्रीन पे जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है वो ऑटो इंडस्ट्री का ट्रायंगल है। इस ऑटो इंडस्ट्री के ट्रायंगल को यदि हम 3 भागों में बांटें और उनका नामकरण करें तो लेवल 1, 2 एंड 3, जिसको कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल कह सकते हैं, और एक नाम दें तो ये बेसिकली जो थर्ड लेवल है सबसे नीचे वो ट्रेड लेवल है, बीच में सब प्रोफेशनल पीपल दे आर वर्किंग, एंड टॉप पे प्रोफेशनल्स हैं जो उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इनको प्रोफेशनल्स और सब प्रोफेशनल हमने किया है डिप्लोमा लेवल पे एंड डिग्री लेवल पे। जो डिग्री होल्डर्स हैं वो सबसे ऊपर हैं और जो कि कम नंबर में है, जिसलिए वो जो ट्रायंगल सबसे ऊपर छोटा हो रहा है, उससे ज्यादा जो है वो डिप्लोमा होल्डर्स है। और सबसे नीचे की बात करें यदि हम, तो ये जो नीचे वाला आपको लाल रंग से दिखाया गया है, ये वो लोगों का सेगमेंट है जो कि इंडस्ट्री में ट्रेड लेवल पे काम कर रहे हैं, जो कि बैकबोन है इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री इनके बिना नहीं चल सकती। पर लेकिन दिक्कत यह है कि 60 साल स्वतंत्रता के होने के बाद भी हमने डिप्लोमा और डिग्री के लेवल पे तो काफी काम किया। कोई आदमी डिप्लोमा करने के बाद डिग्री करना चाहे तो उसके लिए भी चैनल्स अवेलेबल हैं कि वो AMI कर सकता है, वो दूसरे कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज में जो पार्ट टाइम डिग्री कोर्स चलते हैं उनमें भी एडमिशन ले सकता है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने भी उन लोगों के लिए प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं, बीटेक प्रोग्राम। पर जो नीचे वाला सेगमेंट है, लाल रंग से दिखाया गया है, ये सेगमेंट है ऑटोमोबाइल वर्कर्स का, और इनके लिए कोई भी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन एवेन्यू आज तक बनाया नहीं गया। तो ये एक कोशिश है हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की कि इस सेगमेंट को एड्रेस किया जाए, इस सेगमेंट के लोगों के लिए कुछ नए प्रोग्राम शुरू किए जाएं। और इसकी जो वॉल्स मैंने बनाई है, इसमें आप जो ग्राफिक में देख रहे हैं वो भी काफी थिक है कि इसमें कोई ऊपर अपग्रेडेशन का भी कोई चांस नहीं है। तो हमने इस प्रोग्राम को शुरुआत जो की है वो एक सर्टिफिकेट लेवल से की है। हो सकता है कि कल यदि इसका रेस्पॉन्स अच्छा आता है और लोग ज्यादा इसको करना चाहते हैं तो हम ये भी सोच सकते हैं कि उनको फिर हम डिप्लोमा के लिए ले जाएं और फिर डिप्लोमा कर लें तो फिर वो हमारे बीटेक प्रोग्राम में जा सकते हैं। तो इस ग्राफिक के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि जो बैकबोन है इंडस्ट्री की, जो ट्रेड लेवल वर्कर्स हैं, उनके लिए एजुकेशनल एवेन्यूज क्रिएट करने की एक कोशिश है ये संयुक्त रूप से हीरो होंडा और इग्नू की। इसके बाद हम देखें यदि कि क्या कारण है कि इस सेगमेंट के लिए अभी तक कोई प्रोग्राम बनाए नहीं गए। तो सबसे पहला कारण है कि इसमें जो लोग हैं काम करने वाले, वो लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं अपना, और उनके पास ये समय नहीं है कि वो 10 से 5 किसी कॉलेज में आ सकें। ये नंबर जो है ऐसे लोगों का वो भी बहुत ज्यादा है और वो भी पूरे देश में फैला हुआ है। तो इस तरह से जो अधिकता है उनकी, नंबर ज्यादा है, ये भी एक कारण है कि इस तरह के कोई प्रोग्राम अभी तक नहीं बनाए गए। सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमें जो हमें ट्रेनिंग देनी है वो ट्रेनिंग वर्क से रिलेटेड है। जो नॉर्मली कॉलेजेस में, कन्वेंशनल सिस्टम में, क्लासरूम टीचिंग में, जो क्लासरूम में बिठा के टीचिंग पढ़ाई की जाती है, उसमें
काम से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनको पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए आपको हैंड्स ऑन जॉब ट्रेनिंग चाहिए, जहां पे आप खुद करके देखें, और जहां पे कि बाद में जब एक स्टूडेंट ट्रेनिंग पूरा कर लेता है तो सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि वो किसी काम को जानता है, उसे काम करना आना चाहिए, वो काम करके दिखा सके एग्जामिनेशन बॉडी के सामने, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और इसी कारण से आज तक इस तरह के सेगमेंट के लिए, इस तरह के वर्क के लिए सोसाइटी के या समाज के इस तरह के प्रोग्राम नहीं बन पाए, ये भी एक कारण है। और लास्ट कारण जो है वो ये है कि आप जहां भी काम करते हैं वहां आपका एम्प्लॉयर होता है जो आप जिसके यहाँ काम कर रहे हैं, उसको भी दिक्कत होती है कि आपको वो कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए छोड़ सके। इसलिए हमने इस सारी चीजों को ध्यान में रख के इस प्रोग्राम को डिजाइन किया, और फिर उसके बाद हमने कहा कि इस पूरी परिस्थितियों में ओपन लर्निंग और डिस्टेंस एजुकेशन इज द ओनली आंसर टू एड्रेस दिस टारगेट ग्रुप। जो आपका टारगेट ग्रुप है, जो हम इस समय टारगेट ग्रुप लेके चल रहे हैं, उनके लिए सबसे जरूरी है कि हम प्रोग्राम डिस्टेंस एजुकेशन या दूरस्थ शिक्षा में शुरू करें, तभी हम कुछ कर सकते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखकर हमने ये प्रोग्राम शुरू किया, और ये काफी सक्सेसफुल रहा। शुरू के 7 साइकिल जो हुए उसमें, तो इस तरह से मैं इस पूरे डिस्कशन के माध्यम से आपको ये बताना चाहता था कि क्यों इस तरह के प्रोग्राम अब तक शुरू नहीं हुए, और जो प्रोग्राम शुरू नहीं हुए तो क्यों शुरू नहीं हुए, और उसके बाद हमने क्या किया कि इस प्रोग्राम को हम सक्सेसफुल कर सकते हैं। इसके बाद एक निश्चित रूप से आपके दिमाग में बात उठती होगी कि क्यों ये प्रोग्राम जरूरी है। आप अच्छा खासा कहीं काम कर रहे हैं, आप काम सीखे हुए हैं, फिर भी आपको ये क्यों जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि आप काम कर रहे हैं, आपको इस बात का प्रमाण आपके पास नहीं है। आप बहुत अच्छे काम करते हैं, पर लेकिन एक कागज का टुकड़ा, जो हमारे देश में जो तरीका है बताने का, एक कागज का टुकड़ा जो कि किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सर्टिफाइड हो कि आप काम जानते हैं, उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सब लोग माने। आपको कोई भी सर्टिफिकेट लिख के दे सकता है कि आप काम जानते हैं, पर हो सकता है जब उस सर्टिफिकेट को लेके आप कहीं जाएं तो वो जिसके पास आप जा रहे हैं वो ना माने उस आदमी को कि हम उसको नहीं जानते जिसने लिखा है। इसलिए ये महती जिम्मेदारी उठाई है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और हीरो होंडा ने कि हम मिलकर आपको सर्टिफाई करेंगे, जो कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने क्षेत्र में अपना नाम रखते हैं। तब आपको जो वो सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको जिसके पास भी आप जाएंगे तो वो उसको मानेगा। तो इस तरह से आपकी जो स्किल है उसका रिकॉग्निशन होगा। दूसरा कारण यह है कि जब आप अच्छा काम करेंगे, जब आदमी कोई अपग्रेडेशन होता है, जब वो ऊपर उठता है तो वो काम भी अच्छे से करता है, और जब वो काम अच्छे से करता है तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता है, जिस कस्टमर के लिए आप काम करते हैं। देखिए, इंडस्ट्री में कोई भी काम करता है तो कस्टमर के लिए काम करता है, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा जरूरी होता है उस आदमी के लिए कि वो जो भी उसके पास आता है कस्टमर, उसको वो सेटिस्फाई कर सके। तो इस प्रकार के सर्टिफिकेशन से और स्ट्रक्चर ट्रेनिंग से कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता है। आपकी इंडस्ट्री में जो एक्सेप्टेबिलिटी है, आप किसी के पास जाते हैं विद दिस सर्टिफिकेशन, योर एक्सेप्टेबिलिटी, आपको जो इंडस्ट्री लेती है आपको जिस ढंग से, वो भी बढ़ता है। आप कल यदि ये डिसाइड करते हैं कि हम देश छोड़ के दूसरे देश में काम करने जाना चाहते हैं, तो आपकी वीजा रिक्वायरमेंट और उन सब चीजों के लिए भी ये सर्टिफिकेट आपको निश्चित रूप से हेल्प करता है। फिर इसके बाद जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो निश्चित रूप से जो क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी है काम में, वो भी निश्चित रूप से अपने आप ही बढ़ती है। आपके जो कंडीशंस हैं, सर्विस कंडीशन है, वेजेस हैं, जो पैसे आपको मिलते हैं, उसमें भी बढ़ोतरी होती है। और लास्टली, फुलफिलमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट। बेसिकली कभी ऐसा हो सकता है कि सरकार भी ऐसा कोई लेजिस्लेशन लेके आ सकती है, कानून बना सकती है कि जो भी आदमी काम कर रहा है उसको सर्टिफाइड होना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग लेना चाहिए। तो उस समय भी ये सर्टिफिकेट काफी काम का होगा। तो ये वो कारण मैं गिनाना चाहता था कि क्यों सर्टिफिकेशन क्यों जरूरी है, ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। तो इसके मद्देनजर ये सारे कारण हैं, इसलिए आपको ये ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन की जरूरत है। और ये वो फैक्टर्स हैं विच कैन हेल्प यू आफ्टर टेकिंग दिस सर्टिफिकेट फ्रॉम इग्नू। इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि ये मैंने कई बार बताया कि ये हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इसका एक संयुक्त तत्वावधान में ये कार्यक्रम चल रहा है। इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड वोकेशनल क्वालिफिकेशन सिस्टम जो है हमने अपनाया है ट्रेनिंग देने के लिए, जहां पे कि मैंने आपको बताया कि आपका सिर्फ काम आपको आता है ये जरूरी है, आप करके दिखा सकते हैं ये जरूरी है, सिर्फ आप काम जानते हैं उतने से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड वोकेशनल सिस्टम में यही होता है कि ट्रेनिंग इस तरह से दी जाती है कि आप उस काम को कर सकें। और फाइनली इस पूरे जो भी एमओयू है, हमारा एग्रीमेंट है, उसमें सारी एकेडमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी
हमारे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पास है, जबकि इसके प्रोग्राम डिलीवरी जो है हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड करती है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड वोकेशनल क्वालिफिकेशन सिस्टम के बारे में यदि हम बात करें तो इसमें 3-4 कंपोनेंट हैं। सबसे पहला बेसिक कॉम्पिटेंसी कि आप किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे केस में ये मोटरसाइकिल सर्विस एंड रिपेयर की बात हम कर रहे हैं। इसके बाद हमने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स डिवाइस किए हैं, जो कि हीरो होंडा इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री से बैठ के हमने पूछा कि क्या परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड आप सोचते हैं कि एक वर्कर में होने चाहिए, जो कि आप उसको सर्टिफाई कर सकें कि ये अच्छा वर्कर है। उन्होंने हमको स्टैंडर्ड्स दिए। हमने सारे स्टैंडर्ड्स के लिए कुछ क्राइटेरिया डिवाइस किए और उन सारे स्टैंडर्ड्स के लिए हमने एविडेंसेस भी डिवाइस किए। ये एविडेंस 3 प्रकार के हैं। परफॉर्मेंस एविडेंस, जहां पे कि आपको इस बात का प्रमाण देना होगा कि आप काम कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री एविडेंस जो है, इसमें जब आप हैंड्स ऑन जॉब ट्रेनिंग में जाते हैं, जब हीरो होंडा डीलर्स वर्कशॉप में आपको अटैच किया जाता है, वहां पे निरंतर आपका इवैल्यूएशन होता है। आप 6 दिन के लिए जाते हैं, आपको 6 दिन 10 में से नंबर मिलते हैं, वो आपका सप्लीमेंट्री एविडेंस होता है। और प्रायर अचीवमेंट एविडेंस, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप कोई भी प्रोग्राम शुरू करें तो उससे पहले आपने जो किया है, आपकी उस मेहनत को भी हम रिकॉग्नाइज करें। तो प्रायर अचीवमेंट एविडेंस वो एविडेंस है जहां पे कि आपका जो पहले किया हुआ काम है उसको भी हम रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इस तरह से ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड वोकेशनल क्वालिफिकेशन सिस्टम हमने डेवलप किया है। इसके डिटेल आपको जो किताब मिलेगी, उस किताब में जो बुक 3 है, उस बुक में पीछे ये 11 कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स लगे हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। उसमें हर एक पेज पे आपको एक स्टैंडर्ड मिलेगा और आपका सर्टिफिकेशन तभी होगा जब आप उस स्टैंडर्ड्स को अचीव कर लेंगे। यहां पे यदि हम देखें, एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी। ये परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड की लिस्ट है, जिसमें कि अंडरस्टैंड बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन, जो कि आपको यूज होती है रोज। एयर फिल्टर क्लीनिंग, इंजन ऑयल रिप्लेसमेंट, ड्राइव चैन क्लीनिंग, लुब्रिकेशन एंड एडजस्टमेंट, स्टेटर प्लेट एंड एसटी कॉइल रेजिस्टेंस, वैल्यू चेकिंग, कार्बोरेटर क्लीनिंग एंड ट्यूनिंग, स्पार्क प्लग इंस्पेक्शन, क्लीनिंग एंड एडजस्टमेंट। ये एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट नहीं है माफ कीजिएगा। इस लिस्ट में इस तरह के जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये हमको हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड से मिले और इन स्टैंडर्ड्स पे हमने काम किया। आपका जो कोर्स मटेरियल हमने बनाया वो इस तरह से बनाया कि उसको पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करने के बाद आप इन सारे स्टैंडर्ड्स को अचीव कर सके। एक नटशेल में यदि हम देखें कि जो एट ए ग्लैंस कहते हैं जिसको, सर्टिफिकेट इन मोटरसाइकिल सर्विस एंड रिपेयर, ये कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है। इसका 2 महीने का प्रोग्राम है। ये नॉन क्रेडिट प्रोग्राम है। यूनिवर्सिटी सिस्टम में हमारे यहाँ क्रेडिट दिए जाते हैं एकेडमिक प्रोग्राम को, तो ये नॉन क्रेडिट प्रोग्राम है क्योंकि ये कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है, जिसमें कि आपको खुद हाथ से काम करना आना चाहिए, ये बताने की कोशिश की है। एंड प्रोग्राम फी जो है 850 रुपए है। प्रोग्राम डिलीवरी में आपको मैं अभी बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे कंपोनेंट हैं, कहां से कहां जाना है आपको। और जो इसका कोर्स वेयर डेवलप किया है, जो कोर्स मटेरियल डेवलप किया है, उसमें 4 किताबें हैं। एक स्टार्टर किट, फिर मोटरसाइकिल सर्विस एंड मेंटेनेंस, फिर मोटरसाइकिल रिपेयर एंड ट्रबल शूटिंग, एंड फाइनली टेक्नीशियंस वर्कबुक। The details of these course material which we have prepared for this program is on your screen. First course is NET 001, the starter kit. इसमें introduction to service sector, मोटरसाइकिल की पूरी जानकारी आपको दूसरी यूनिट में दी गई है। इसके बाद तीसरी यूनिट जो है उसमें आपको ये बताया गया है कि आप इस सर्टिफिकेट को करने के बाद यदि अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको कहां से लोन मिल सकता है, कैसे आप अपना नया प्रोग्राम नया गैरेज शुरू कर सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में जानकारी दी गई है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की जो यूनिट है, यूनिट 3, जो दूसरे कोर्स है NET 002 विच इज मोटरसाइकिल सर्विस एंड मेंटेनेंस। इसमें टूल्स और इक्विपमेंट के बारे में पहली यूनिट में बताया। दूसरे में मोटरसाइकिल सर्विस की क्या क्या स्टेजेस हैं, कितनी सर्विसिंग होती है, वो सारी चीजें, और उन सर्विसिंग में आपको करना क्या है। सर्विस एंड मेंटेनेंस प्रोसीजर्स इसमें तीसरी यूनिट में बताया गया है। यूनिट जो है बेसिकली एक चैप्टर्स हैं। इस किताबों में जो चैप्टर दिए हैं उनको हम यूनिट कहते हैं अपने दूरस्थ शिक्षा की टर्मिनोलॉजी में। एंड फाइनली द लास्ट बुक NET 003, it deals with the motorcycle repair and troubleshooting, where the motorcycle repairing, possible basically the fault in the motorcycle and its remedy, the troubleshooting, and last unit जो इस किताब की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि शायद स्क्रीन में कट भी रही है, जनरल सेफ्टी एंड सर्विस टिप्स। क्योंकि सेफ्टी बहुत जरूरी होती है जब भी आप कोई काम करते हैं किसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में, तो वहां पे आपकी खुद की सेफ्टी और सराउंडिंग की सेफ्टी और लोगों की सेफ्टी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इन सारी चीजों को भी
अंतिम किताब की अंतिम यूनिट में आपको बताया गया है। ये एक फिगर यहाँ पे फोटोग्राफ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि इस कोर्स मटेरियल को हमने जब बनाया था तो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर VNR राजशेखरन पिल्लई, जो कि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उनके कर कमलों से हमारे इस कोर्स मटेरियल को हमने रिलीज किया था। उस समय का ये फोटोग्राफ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। हमारे वाइस चांसलर जिनके हाथ में वो लाल किताबें हैं वो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं एक कंसेप्चुअल स्कीमेटिक ऑफ दिस प्रोग्राम। आप इस प्रोग्राम को जब करते हैं तो आपके पास 4 हेल्पिंग नोट्स अवेलेबल हैं। यदि आप देखें कि आप खुद वर्क बेंच से, जो नीले रंग का बीच में ब्लॉक दिख रहा है, वहां पे आप खुद खड़े हैं, जो कि आप वर्क बेंच से अटैच हैं, किसी काम में लगे हुए हैं, और आपका क्योंकि आपको किताबें दी गई हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं, तो उसके बाद वाला जो रेक्टेंगल है उसमें लिखा है लर्नर्स ओन एनवायरनमेंट। इसका मतलब आपका खुद का जो वातावरण है, आप खुद जो सेल्फ स्टडी करते हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपको इस पूरे प्रोग्राम के दौरान लेफ्ट हैंड साइड में इग्नू रीजनल सेंटर है, जहां पे कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प यदि कुछ चाहिए, जैसे कि आज टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के लिए सब लोग रीजनल सेंटर्स में हैं, तो ये इग्नू रीजनल सेंटर आपके हेल्प के लिए है। उसके नीचे आपको इग्नू HHML प्रोजेक्ट ऑफिस एट इग्नू कैंपस, जो कि हमारे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में स्थित है, वहां पे आप जाके कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वहां भी हमें फोन कर सकते हैं, आ सकते हैं। राइट हैंड साइड में इग्नू HHML ट्रेनिंग सेंटर, जिससे आप अटैच हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टूडियो में बैठे हुए लोग हैं, जो कि हीरो होंडा ट्रेनिंग सेंटर महिपालपुर में, और दूसरा जो हमारा तिलक नगर का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर है, वो ट्रेनिंग सेंटर है इग्नू HHML ट्रेनिंग सेंटर। और लास्टली जो राइट साइड का सबसे नीचे वाला नोड है, वो हीरो होंडा डीलर्स वर्कशॉप है, या कोई और प्राइवेट रेप्यूटेड गैरेज है, जहां पे कि आपको हैंड्स ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए 6 दिन के लिए अटैच किया जाएगा। तो ये एक कंसेप्चुअल स्कीमेटिक है, जहां पे कि आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि आपकी पढ़ाई के दौरान आप इन 4 नोट्स जो हेल्पिंग हैंड्स हैं आपके लिए, वो निरंतर काम करते रहेंगे, और आपको कुछ भी परेशानी होती है तो आप इन चारों में किसी भी तरह की परेशानी के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स मैं दिखाना चाहूंगा स्क्रीन पे कि अभी जो 7 साइकिल हमने की हैं, इन 7 साइकिल में बेसिकली 957 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी बीन ट्रेन्ड एंड सर्टिफाइड, जो फर्स्ट साइकिल से लेकर 7 साइकिल तक। लास्ट साइकिल जो कि 13 सेंटर्स पे की गई और 254 स्टूडेंट्स उसमें थे। इसी क्रम में मैं ये और बताना चाहूंगा कि 8वीं साइकिल के लिए जो एनरोलमेंट इस समय हमारे पास हुआ है, वो 15 सेंटर्स में है। इन 15 सेंटर्स में मैं पढ़ दूं सबके जानकारी के लिए, जो कि एक बार में सब लोगों को पता चल जाएगा कि बैंगलोर से 28, भोपाल से 14, चेन्नई से 25, हैदराबाद से 20, कोलकाता से 22, न्यू दिल्ली से 22, लखनऊ से 20, पूना से 15, बड़ौदा से 17, ये हीरो होंडा ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जिनसे कि एनरोलमेंट 8 साइकिल के लिए हुआ है। इसके अलावा श्री गुरु हरकिशन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर न्यू दिल्ली से 25, टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर गुवाहाटी में 25, पीपल्स कॉलेज मित्र निकेतन तिरुवनंतपुरम में 11, BG सेंटर किर्की में 20, जनरल करियप्पा हायर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई में 25, और फाइनली श्री के कृष्णा स्वामी नायडू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर कोयम्बटूर 25. So this is the total enrollment we have for the 8th cycle. The forms are in transit, but the information has come that these many people have come forward to join this program. The total numbers comes out to be 314, where in the last cycle we had 254 students. In this cycle we have 314 students for the 8th cycle. As you all know that for the different cycles we have the new centers which are joining hands with us. So due to this time we are conducting this program in 15 places, and the total number of enrollment is 314. Now I'll quickly go to the process flow, that how you will go for the study in this program. First activity, very first activity in this program is the induction and orientation session, in which you are sitting just now. The next activity will start on 10th of this month, the second Sunday of every program duration. The second Sunday for the February-March is the 10th. So 10th onwards you will go to the training centers for next 4 Sundays, and thereafter on 6th Monday to Friday, 6 days you will be attached to Hero Honda dealers workshop, and then one day you will come back to the training center, and finally you will be tested through our trade test on
the 8th or the last Sunday. The dates I will be giving you. Before that, I want to show you with the graphic here the process flow, the educational administration for this program. There are 2 months. There are 2 months program. You can see on your screen. These are 1, 2, 3, 4 Sundays in the month 1, and these are the 4 Sundays in the month 2. This is basically the color coding which we have used here. The 2nd, 3rd, 4th and 5th Sunday which has been shown here in the orange color is nothing but the training and demonstration sessions which will be conducted at the training centers. The 1st and 6th Sunday is free, which is for your self-study. This is the time between the Sundays is also for your self-study. You see here at 1 and 2 in between. The first one, induction and orientation session, we are already conducting on the 7th of this month. And then finally, between 6th and 7th Sunday, you will see the third one, the hands-on job training session, for which you will be attached to the Hero Honda dealers workshop for continuous 6 days. And there, not only you will get training, you will also be evaluated. In the date wise for this cycle, if we see the 10th, 17th and 24th of February, along with the 2nd March, you have to go to training centers. And then from 10 to 15 March, you will be attached to the dealers workshop. You will come back to the training center on March 23rd and finally on March 30th, 30 मार्च को आपका एग्जाम होगा और उस एग्जाम के पास करने पे आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा. तो ये प्रोसेस फ्लो था, ये सारे इस प्रोग्राम के लिए कि कौन कैसे कैसे जाएगा. ये एक लिस्ट है स्क्रीन पे जो ट्रेनिंग सेंटर हीरो होंडा के हैं, इनको सेंटर कोड भी दिए गए हैं. ये 9 सेंटर हीरो होंडा के हैं और इसके अलावा जो 7 और सेंटर हैं, ये वो सेंटर्स हैं जो कि दूसरे थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूट वी कैन कॉल, जहां पे कि दूसरे इंस्टीट्यूट आगे आए हैं हमारी हेल्प करने के लिए और वो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को चला रहे हैं. तो ये उन सेंटर्स की लिस्ट है. इसमें लास्ट 3 सेंटर्स जो है, जनरल करियप्पा हायर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई, श्री के कृष्णस्वामी नायडू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर कोयम्बटूर, BGN सेंटर किर्की, इनको अभी कोड अलॉट नहीं हुए हैं, जो कि प्रोसेस हो रहा है और इनको भी कोड मिलेंगे. Now I request everyone at the regional centers that now you can start making phone calls. The numbers for the phone calls, as you all know, at the regional center is, but for the benefit of all the students, it is 2953-2844, 2953-2845, and we have got one toll-free number also, 1-800-112345, and we also have the fax number 2953-6134. On your screen you can see the studio's number which has been displayed here. So now I request everyone at the regional center, the presentation part is over. We will be talking about the evaluation methodology. Dr. Vyas is with me. He will be throwing light on the evaluation methodology. But I now request for all regional centers to start interacting with us, your problems, your feedback, which is very valuable for us to make constant improvement in the program. As I wrote in my email to all the centers also, that we have scrapped the requirement of identity card here. Now I will compile the data and I will send you the complete list of enrollment number along with the enrollment number of all the students to all the centers, so that they can note down the enrollment number. You will appreciate for this kind of program of 2 months duration, it is very difficult to get the data from you and thereafter to send you back the I-cards. So that's why we have decided that we will do away with the I-cards of the students from this cycle onwards, and now we will be giving you the enrollment number directly through email to all the centers. So now I request all to start calling. In the meantime, may I request Dr. Vyas to throw. Pardon? There is a call from Baroda. Okay. Yes, Baroda. Hello. Hello. Disconnected. It is disconnected. Okay. They can try again. We had a call from Baroda. But in the meantime, now I request Dr. Vyas to throw some light on the evaluation methodology, because it is very pertinent and very important for a student to know that how he will be evaluated, how he has to channelize his studies and efforts so that he can get through in this program. Dr. Vyas. See, thank you very much, Dr. Manoj, and we welcome our all students and viewers at different regional centers and present in the studio. See, our evaluation scheme is very simple. As Dr. Manoj told you that you will be... Call from Baroda.
Hello, yes, Baroda, go ahead. कि कुछ बात चल रही है ना. हेलो. Hello, yes, go ahead. यस सर, जस्ट अ मिनट. सर, गुड आफ्टरनून, वरदराज हियर. Good afternoon. हेलो. Yes, yes, Yeah, go we ahead. are listening. हाउ आर यू सर? We are fine. Yes. So we are at present, we are with around 17 candidates here. Yes. And most of the people are basically from Gujarat, and they are more interested in vernacular papers. Okay. Baroda, one request So I'll make that काफी the दिन से TV हमने set आपको रिक्वेस्ट voice. कर रहा है. Baroda, please, the volume of the TV set there at the Baroda, please just lower it down so that we Hello? can hear you better. हाँ, yes sir, reduce the volume. Yeah. Yes, go ahead. Yes sir, so that's what we are requesting you. काफी दिन से हमने आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है. We are looking for this reading material in vernacular language, that's in Gujarati. Okay. Point is well taken. I have again, I'll make the same request to Baroda that you identify a person who is competent to translate the material in Gujarati, and from our side there is no problem. The similar kind of effort has been made first in the Calcutta, thereafter it was in Chennai, and then it was in Trivandrum, where we have translated our course material in Bengali and Tamil and also in Malayalam, respectively. So the similar kind of effort can be made at other centers also, where you can identify a person who can translate the material for us in the vernacular languages, and we will be definitely paying him whatever the expenses incurred in this. But as per the IGNOU rules, you can talk to your colleagues at Calcutta, Chennai and Trivandrum that how they have done and what is the payment norms and all. Otherwise, you can directly contact me, you can send mail to me, I'll also give you the rate. But the person identification, I request you that you please identify a person to whom we can give the work for translating the material in the respective languages. Yes, Dr. Vyas. Yes, so we were talking about our evaluation strategy for this program. So as Dr. Manoj told you that you will be evaluated during your hands-on job training, which is for 6 days, that is 1 week. So as he said that every day there will be evaluation during this program, and you will be marked for each day 10 out of 10 marks. So this will make total 60 marks, and 10 marks are reserved for your general behavior and how you take up all the problems there at the workshop where you are undergoing your hands-on job training. Thereafter, finally, when you come for your trade test, that is on the final day. Trade test is on the last Sunday of the second month. So on that day, you will be asked to generate certain evidences. That is that the evaluators there will give you a problem. There will be some kind of fault in the motorcycle. They will create it, and then you have to identify that what kind of fault has been created, how it is to be dealt. So that everything you have to do basically. Supposing that there is a problem in the spark plug, so you have to find that the motorcycle is not starting, then you have to see whether the petrol is there or not, whether the knob is, fuel knob is open or not, or is it the problem with the spark plug, or whether there is some connection, electricity is not flowing, current is not flowing. So for all these things that you have to yourself find out the fault, and then you have to attend to it. And not only attend to it, then you have to... Yeah, Kolkata, please go ahead. Hello, Calcutta. Hello, Calcutta. Hello. Yes. Yes, Good go ahead, afternoon. please. Good afternoon, sir. Good afternoon. This is Dr. S.S. Singh, Deputy Director, IGNOU Regional Center, Kolkata. We have We welcome Dr. Singh. participants Yes. from our Hero Honda Program Study Center. Yes. They are participating, and we are very hopeful and getting very interested. They are very satisfied with your presentation. So thank you, sir. If any further queries, we will ask later on. Thank you, Dr. Singh.
And thank you very much, the Hero Honda officials present there at Kolkata Study Center, Regional Center, sorry. And we know that they are getting full support from our regional center, and particularly Dr. Singh is personally involved in all kind of activities with our Kolkata center. Thank you very much for that. Please. Yeah, so we... Your call from? Vadodara. Yes, Vadodara. It has got I disconnected. think it is got this. Yeah, so as we were talking that you will be evaluated during your hands-on job training every day. So there are 10 marks for each day, and thereafter the 10 marks are reserved again for your general behavior and how you tackle the problems there, being at the workshop where you are given the hands-on job training. Then when you come for the final day for the trade test, on trade test then you will be given a problem that there is some fault in the motorcycle that you have to identify and you have to attend to it. Similarly, they may give you a problem like, no, you have to service the whole motorcycle or some part of it. Supposing they may give you the exercise like you have to clean the air filter, or they may give you that, okay, you please adjust the clearance in the this brake or clutch or anywhere it can be given. Chennai. Yes. Hello. चेन्नई साहब, नमस्ते साहब। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, हम चेन्नई पे हैं, हमारा टू व्हीलर ओनर एसोसिएशन की तरफ से आपके पास ट्रेनिंग ले रहे हैं हमारे पूरे मैकेनिक्स, लोकल मैकेनिक्स। बहुत बढ़िया है साहब, बहुत खुशी है क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, अनएजुकेटेड हैं, उन लोगों को सर्टिफिकेट मिलती है तो बहुत फख्र करते हैं उन लोग अपने आप को, और उनका वर्कशॉप भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं लेटेस्ट इसमें। बहुत धन्यवाद है साहब आपका, ऐसे ही करते रहिए, बहुत अच्छा रहेगा साहब। अभी तक हम 90 पीपल्स को ट्रेनिंग दे दिए हैं सब, करियप्पा स्कूल पे और हीरो होंडा ट्रेनिंग पे। हाँ साहब, थैंक यू। टू व्हीलर पे ट्रेशरर बात कर रहा हूँ साहब, मेरा नाम सुजात जी। हाँ, सुजात जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से जो है और हम सभी जगह से सहयोग चाहेंगे। सबसे खुशी की बात कि चेन्नई से हिंदी में बात कर रहे हैं तो इससे हमें ये एक डर खत्म हो गया कि हम हिंदी में बात कर रहे थे तो चेन्नई में समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा था, क्योंकि आप भी ये अप्रिशिएट करेंगे कि सारी भाषाओं में यहाँ से बात करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम जितना कोशिश करते हैं कि हिंदी या अंग्रेजी में हम उसको कर सकें, पर लेकिन ये मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है कि चेन्नई से भी हिंदी में बात हो रही है। और पर्टिकुलरली जो चेन्नई के टू व्हीलर एसोसिएशन है, उनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा कि उनके माध्यम से जो कैंडिडेट हमारे यहाँ आ रहे हैं, और उन्होंने बताया कि 90 के करीब छात्रों को अभी तक ट्रेनिंग मिल चुकी है, ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है और वो हम अपने तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। अच्छा, तो हम वापस आते हैं अपनी एवेल्युएशन स्कीम पर। तो जैसा हमने बताया कि आपको जब ट्रेड टेस्ट होगा तो उस दिन आपको एक एक्सरसाइज दी जाएगी, कोई देयर विल बी सम ट्रबल इन द मोटरसाइकिल एंड यू विल बी कैरिंग इट आउट, एंड नॉट ओनली यू हैव टू कैरी आउट, you have to meet the performance standard in terms of that whatsoever has been laid down. Some clearance is made. Guwahati. Yes, Guwahati. Please go ahead. हाँ जी, नमस्ते सर, मैं रतन भास्कर बोल रहा हूँ गुवाहाटी से। हाँ रतन जी, सबसे पहले आप हमारी बधाई स्वीकार करें। आपको भी सर। बताएं साहब। अच्छा, मैं अभी हमारा ये 3rd बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें 25 लड़के पार्टिसिपेट हुए हैं। गुड। उसमें 2 बैच अपने हो चुके हैं, उसमें 18 लड़के थे। हाँ हाँ। और अभी ये 3rd बैच में 25 लड़के हैं, उसमें से आज की परसेंट तो ऐसे 19 लड़के ही हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि कुछ लड़के ऐसे हैं सर, वो एकदम बिल्कुल फ्रेश हैं, 4 या 5 लड़के, तो उनके लिए क्या करेंगे? उनका कहना यह है कि जो एडमिशन लोगों ने लिया है उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल फ्रेश हैं। हालांकि अपना प्रोग्राम जो हमने अभी बनाया हुआ है तो उसमें सीधा सा उसका जवाब यह है कि रतन जी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उनके लिए। एक तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इसके अलावा यह है कि इनको सर्टिफिकेट थोड़ा सा बाद में मिल सकता है, क्योंकि कम से कम जो है आपको 50 नंबर चाहिए, 2 महीने तो पूरे के पूरे होने चाहिए आपको, जिसके एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया है हमारा कि 2 महीने का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए। तो हालांकि वैसे देखा जाए तो ये अगर अटेंडेंस इनकी पूरी होती है तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा, उसी दौरान भी इनके पूरे 2 महीने हो सकते हैं और उनके 50 अंक उसमें प्रायर अचीवमेंट एविडेंस जो हमारा आता है
तो उसमें इनके हो सकते हैं। पर, और अगर कुछ दिनों की कमी रह जाती है तो उतने दिन इंतजार करके। व्यास जी, इसमें एक चीज मैं ये कहना, हाँ, बड़ौदा, प्लीज गो अहेड। बड़ौदा। Good afternoon. This is Pradeep here from Baroda. Yes, जी, please go ahead. We are I'm listening. a regional manager here, Yeah. and in fact, let me first compliment the entire team of IGNOU who has taken this initiative since almost last 1.5 years, and it's been really an upgradation of our local technicians in learning. Since we call it learning is ongoing process, and these people who are on the job since long, and in fact this learning is just upgrading their skills, in fact. Correct. And the certifying course is really making them in their career, it's doing very well. In fact, I have interacted so many people who are into this course, and they are so motivated, and when they are thrilled because of the kind of training they are getting from the IGNOU, and that too most critical is that the certificate which they are getting out of it. And in fact, it's my compliment to Dr. Manoj and Dr. Vyas for this. And this the first time I have come across with this live demo when my entire team and my 17 candidates of this IGNOU are here, and they are having this live experience of learning of the new technology which into the learning process of the using the IT and making people more IT friendly. And these people who are into the local garages, doing the work in the motorcycles or maybe in the two-wheelers, and coming across this using of the IT technology. There's a live demo. Thanks a lot for all the help to IGNOU, because in the IGNOU center in Baroda was really kind enough to give us a lot of help and coordination in bringing these people updated. Thank you. Thanks a lot for the entire help and coordination. Thank you, Pradeep ji. Basically, without your support, definitely we can't move an inch, we know. But my thanks are also there for our study center at Baroda, and also to Dr. Kalpana Mishra, our regional director at Ahmedabad, who has arranged this facility there at Baroda itself. And I also want to thank in Baroda particularly the two-wheeler association people who have also come forward to get the training for their people, their technicians. So thanks for everything from Baroda. Is there any call waiting? Okay, we can go ahead. अच्छा, तो जैसा मैं बता रहा था, Okay, this I was waiting. Rather Hyderabad, yes, Hyderabad, Hello? go ahead. Hello? Yes. Hello? Yes, हाँ जी, go हम ahead. लोग सुन रहे हैं, आप बोलिए। Around 15 people are watching the program, sir. Mhm. So they want to ask you some questions, sir. Please. Just. Good afternoon, sir. Good afternoon. हम हैदराबाद से बात कर रहे हैं। बताइए। ये हमारे को अभी हिंदी में आ रहा है स्टडी मटेरियल। तो हेलो। हाँ, बताइए। हेलो। आप बोलते जाइए। तो हमारे को ऐसा तेलुगु में भी स्टडी मटेरियल भेजा तो अच्छा रहता है। आप तो इतनी अच्छी तो हिंदी बोल रहे हैं। इंग्लिश पढ़े तो वाला इधर कितना ज्यादा जन नहीं है। आप तो इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। अच्छा, जैसा कि अभी तो बात करने को हैदराबाद को सबको आता है हिंदी बात करने को। हैदराबाद में लेकिन पढ़ने के लिए तो हिंदी तो नहीं आता, तेलुगु में अच्छा पढ़ सकते सब लोग। चलिए ठीक, आपकी बात सही है, पर मेरा जवाब फिर से वही है जो व्यास जी भी शायद वही रिपीट करना चाहते हैं कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा हैदराबाद के जो हमारे हीरो होंडा के ट्रेनर हैं उनसे कि कोई एक ऐसा आदमी ढूंढे जो कि तेलुगु में हमारे कोर्स मटेरियल को ट्रांसलेट कर सके, और उसका पूरा खर्चा हम इस प्रोजेक्ट से करेंगे अपने यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के हिसाब से। अच्छा, तो हम अपने वापस एवेल्यूएशन स्कीम पे आते हैं। तो मैंने जैसे बताया था कि जब आप ये एविडेंस वहां पे जो भी काम आपको दिया गया है, अगर प्रॉपर फॉल्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं, या जो भी काम दिया गया है कि आपने फिल्टर साफ करना था तो वो प्रॉपरली साफ किया, जो हमारे मैनुअल में बताया गया है, जो हमारी बुक्स में बताया गया है, और साथ में अगर कहीं कोई क्लियरेंस वगैरह जो भी स्टैंडर्ड्स प्रेस्क्राइब किए थे कि साहब इसमें इतना पेट्रोल इतने आयल से अगर आपको उसको मिक्स करके अल्टीमेटली छोड़ना है फिल्टर को, या किस तरह से स्क्वीज करना है उसको, अगर आप सब कुछ बिल्कुल उसी तरह से करेंगे
तो आपको जो है ये कहा जाएगा कि आपने जो है हमारा परफॉर्मेंस एविडेंस जो है वो जनरेट कर दिया है और उसके अंक आपको दिए जाएंगे। और जब ये देखा जाएगा कि आपने एक मीट कर लिया है, आपने एक तो काम कर दिया तो आपको पास हो गया, ठीक है। दूसरा है कि आपने जैसे स्टैंडर्ड्स हमने दिए हैं, जैसे स्पार्क प्लग का गैप था, मान लीजिए वो 0.5 mm है या डिफरेंट जैसा मेक है उसके हिसाब से जो भी दिया गया है, अगर आपने उसी तरह से एडजस्ट उसको कर दिया तो आपको उसकी भी क्लियरेंस होना जरूरी है। जब आपने कर दिया तो आप इसमें भी पास हो जाएंगे। इसके अलावा क्या होगा कि जो आपने ट्रेनिंग ली है, हेलो, यस भोपाल, हेलो। गो अहेड। हेलो यस सर, भोपाल से बोल रहा था जावेद। हाँ बताइए जावेद सर। हेलो हाँ, सर, जावेद जी बोल रहा था बोलिए। भोपाल से। हम्म सर जी, लास्ट ईयर जो ट्रेनिंग हुई थी अपनी यहाँ, हम्म, वो मेरे दोस्तों ने करी थी, हाँ हाँ, तो वो उसके लिए सर्टिफिकेट का बोल रहे थे, इसलिए मुझसे बोला था बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप भी जाइए। तो आप जरा वॉल्यूम कम करें, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम करें। मिलेंगे सर? हाँ पिछली ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट सर कब तक का आएंगे? हाँ, और कोई सवाल है आपका? मेरे ख्याल में नहीं चलिए है। चलिए जावेद साहब, ऐसा है कि आपके सर्टिफिकेट इस समय बन रहे हैं और अगले 15 दिन के अंदर वो सर्टिफिकेट आप तक पहुंच जाएंगे या इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से भोपाल हीरो होंडा ट्रेनिंग सेंटर पे, और वो फिर आपको इन्फॉर्म कर देंगे अपने सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करने के लिए। अगले 15 या 20 दिन में ये सर्टिफिकेट दूसरा, जावेद जी से सुनने से ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने बोला ना कि पिछली साल किया था, तो अभी ऐसा है कि दिसंबर में आपकी साइकिल खत्म हुई थी। उसके अलावा ऐसा होता है कि कुछ ये मार्क्स वगैरह और जो भी डिटेल्स हैं, अल्टीमेटली दे आर नीड टू बी ट्रांसमिटेड टू दिल्ली एंड देयर आफ्टर द सर्टिफिकेट नीड टू बी प्रिपेयर्ड। उसका एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ता है। 2 महीने तो इस प्रोसेस में लग जाते हैं। तो जिस दिन आपका ट्रेड टेस्ट खत्म हो गया उसके बाद 2 महीने तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि उतना वेट किया जाएगा। व्यास जी, हम ऐसा करते हैं कि अब अमित जी से भी अच्छा। कुछ सुन लें, क्योंकि अमित जी हीरो होंडा को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनके बगल में रजनीश मेहता जी और पार्थो जो है वो हार्डकोर ट्रेनिंग मैनेजर्स हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं। तो पहले अमित जी, जरा आप हीरो होंडा के बारे में या जो भी आपके विचार हों। बड़ोदरा, यस बड़ोदरा, हेलो हेलो, यस बड़ोदरा, हेलो, यस, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? बिल्कुल, बहुत आपको अच्छी तरह से। बहुत अच्छे से। हेलो यस यस, गो अहेड। हेलो हाँ हाँ, बताइए साहब, हेलो, आप बोले, यहाँ सुनाई दे रहा है। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। मैं नायडू बात कर रहा हूँ, एरिया ट्रेनिंग इंचार्ज फॉर बड़ौदा। या आपका एक्चुअली स्वागत एक है। पार्टिसिपेंट आपसे बात करना चाहते हैं, 1 मिनट। जल्दी कराइएगा, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं नंदू यादव बोल रहा हूँ बड़ौदा से। बताइए नंदू जी। लास्ट टाइम मैंने फोन किया था आपको सर कि मैं यहाँ बड़ौदा टेक्निकल एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी हूँ, गुड, आपका और ये स्वागत आपका है। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम यहाँ पे 17 जन बैठे हुए हैं, आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, और रीजनल ऑफिस में ही आए हैं हम ट्रेनिंग सेंटर में। या और वहाँ पे काफी सपोर्ट मिल रहा है हमें। हीरो होंडा के जो इंजीनियर्स है, जो पूरा स्टाफ है, उन्होंने काफी हमें हेल्प की है। और ये अपना 8 साइकिल कंप्लीट हुई और 9 साइकिल में हम 17 जन का ही पूरा नाम है। हाँ, 8वें साइकिल में। हाँ, थैंक्स फॉर अमित सर, पार्थ सर एंड दत्ता सर एंड डॉक्टर व्यास सर। मैं व्यास सर से कहना चाहूंगा कि सर जो आप टेक्निकल जो वर्ड्स है वो हिंदी में बताए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इंग्लिश में बोलते हैं, टेक्नीशियनों को नहीं पता चलता है। प्लीज आप अच्छा। हिंदी में बात कीजिए। अच्छा अच्छा। चलिए अमित जी। अच्छा, मैं शुक्रिया करना चाहूँगा हमारे सारे ट्रेनिंग सेंटर्स का, हीरो होंडा के सब लोगों का और इस प्रोग्राम से एसोसिएटेड सब लोगों का। बहुत खुशी की बात है कि तकरीबन ऑलमोस्ट 16 सेंटर्स हमने चालू कर लिए हैं। इस साल इस प्रोग्राम को मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी एक सक्सेस मिली है और आप सब लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगा इसके लिए। काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, काम यहाँ से शुरू होता है। अगला साल आने वाला है और 2 महीने में हम अगले साल की शुरुआत करेंगे, नेक्स्ट फिस्कल ईयर। और हमने अगले साल का ये इग्नू के साथ मिलके एक उद्देश्य बनाया है कि अगले साल खत्म होने से पहले हमारे हर स्टेट के अंदर इग्नू का एक रीजनल सेंटर होगा। अब आप कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं। यस यस, करेक्टली। सो अगले साल अप्रैल ऑनवर्ड्स वी प्लान कि जितने भी हमारी स्टेट्स जो अभी अनरिप्रेजेंटेटेड रह गई हैं, उस हर लोकेशन पे, पंजाब हुआ या जो भी स्टेट है जहाँ भी हमारे सेंटर्स नहीं हैं,
इग्नू की मदद से और हमारे हीरो होंडा की टीम की मदद से हम चाहेंगे कि हर जगह पे हमारा एक सेंटर हो और जितने हमारे टेक्नीशियन भाई हैं हिंदुस्तान भर में उनके पास ये प्रोग्राम अवेलेबल होना चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Quick words अच्छा from नहीं, हम Rajneesh. एक चीज जानना चाहेंगे कि अगर हमारे स्टूडियो में कोई दूसरा लाइव प्रोग्राम नहीं है आगे, तो क्या हम इससे आगे 10 मिनट और खींच चला सकते हैं? नहीं। अच्छा, इसके लिए बता रहा टाइम की सीमा, समय की सीमा बहुत जरूरी है। क्विक कमेंट फ्रॉम रजनीश। एक शुक्रिया अदा करना चाहूंगा नॉर्थ के लोगों का, जो भी हमारे दिल्ली से कैंडिडेट्स आए हैं, हीरो होंडा ट्रेनिंग सेंटर से, तिलक नगर से और लखनऊ से जो हमें देख रहे हैं। थैंक्स फॉर द कंटिन्यूड सपोर्ट और हम इसी चीज को आगे नॉर्थ में भी रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक यू। क्विक कमेंट फ्रॉम पार्थो। गुड आफ्टरनून ऑल। ट्रेनिंग के बारे में सर ने सबने बोल दिया होगा, आप लोगों को पता लग गया होगा। इन ए ब्रीफ आई वांट टू से दैट कि ये जो ट्रेनिंग होता है इट्स ए लर्निंग प्रोसेस। सो हम एवरीडे कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। डेली हम कुछ ना कुछ सब यहाँ पे जितने भी बैठे हुए सबको इंजन खोलना बांधना आता है, बट हाउ टू डू इट इन अ करेक्ट वे। So this is all about this training program. Thank you. मैं सिर्फ ये कह के खत्म करना चाहूंगा कि हमारी जो एवेल्युएशन स्कीम है ये हमारे स्टूडेंट्स हैंडबुक एंड प्रोस्पेक्टस में दी हुई है। तो जब आप सेंटर पे जाएंगे तो वहां पे इसको पढ़ लें, इसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। पूरे प्रोग्राम गाइड आप जो हमारा स्टूडेंट हैंडबुक एंड प्रोस्पेक्टस है उसे अच्छे से पढ़ें, निश्चित रूप से आपकी सारी क्वेरीज का समाधान वहीं हो जाएगा। और इसी आशा के साथ मैं इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करता हूं और उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जो यहाँ स्टूडियोज में हैं, जो हमारे क्षेत्रीय केंद्रों पे बैठे हुए स्टूडेंट्स, हीरो होंडा ऑफिशियल्स, इग्नू ऑफिशियल्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंटिन्यूड सपोर्ट। थैंक यू।